Lowering of vapor pressure, वाष्प दाब में कमी. We can explain to this with the help of this example. If we take a pure form of water in this container, यदि हम इस कंटेनर में शुद्ध पानी लेते हैं and provide a heat और ताप देते हैं, then water easily convert into vapor form. जल आसानी से वाष्प में बदल जाता है and vapor is collected in this area and develop to the vapor pressure over the surface of water. वाष्प इस क्षेत्र में एकत्र हो जाती है और जल की सतह पर दाब उत्पन्न करती है. In a second condition, we take a impure form of water, mean H2 plus NaCl, put into this beaker. इस बीकर में जल एवं NaCl लेते हैं. We know that H2 water is easily converted into vapor form while NaCl is not converted into vapor form. H2 आसानी से वाष्प में बदल जाता है जबकि NaCl अवाष्पशील पदार्थ है. So only water molecule can be converted into vapor form. In a surface area of the solution, number of water molecule is minimum than the previous condition, because in a previous condition pure form of water is present. इस स्थिति में पानी शुद्ध अवस्था में होता है. So in a per unit area of the surface 100% वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट. कि सतह पर 100% वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं. वाइल इन अ सेकेंड कंडीशन, जबकि सेकेंड कंडीशन में इन अ सरफेस एरिया ऑफ द सॉल्यूशन 100% ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर नॉट प्रेजेंट. 100% वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं रहते हैं because NaCl is also situated in this solution. So minimum vapor is formed in this activity. अतः इसमें वाष्प की मात्रा कम बनती है. While in a first figure maximum vapor is formed, जबकि फर्स्ट फिगर में अधिकतम वाष्प बनती है. So we can say that because of the presence of NaCl, minimum vapor is formed. NaCl के कारण यहाँ वेपर की मात्रा कम बनती है. So vapor pressure in second activity is lower than the first activity. अतः फर्स्ट एक्टिविटी के कंपैरिजन में सेकंड एक्टिविटी में वाष्प दाब में कमी होती है. So vapor pressure of the solution is depends on the number of molecule in per unit area of the solution. मतलब वेपर प्रेशर पर यूनिट एरिया में सिचुएटेड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर निर्भर करता है. एंड प्रॉपर्टी which one is depend on the number of molecule is known as a colligative property. प्रॉपर्टी या गुण जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर निर्भर करता है इसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या अणु संख्य गुणधर्म कहते हैं. Lowering of vapor pressure is also explained by the Raoult's law. If PA naught is denoted to the vapor pressure of pure water, यदि PA नॉट शुद्ध पानी के वेपर प्रेशर को व्यक्त करता है, एंड इफ PA denoted to the vapor pressure of aqueous solution of NaCl, PA वाटर प्लस NaCl सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को डिनोट करता है. देन अकॉर्डिंग टू राउल्स PA
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। विलयन का वाष्प दाब एक्स ए मीन ए कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पर निर्भर करता है, बिकॉज एक्स ए denoted to the mole fraction of a component mean water and xb represent to the mole fraction of NaCl। x से वाटर के मोल फ्रैक्शन को और xb NaCl के मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इफ वी रिमूव द प्रोपोर्शनल मार्क then constant is used, then we can say that Pa equal to Pa naught into XA। Pa naught use as a constant। यह शुद्ध पानी के लिए वाष्प दाब होता है। इट्स रिप्रेजेंट टू दी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर and it's always fixed at a particular temperature and ATM pressure। निश्चित ताप एवं वायुमंडलीय दाब पर जल का वाष्प दाब सदैव निश्चित होता है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में कमी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वाष्प दाब में कमी इक्वल टू जल का शुद्ध जल का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। इफ वैल्यू ऑफ Pa पुट इनटू दिस रिलेशन, यदि Pa के मान को इसमें रखा जाए, देन Pa नॉट माइनस Pa नॉट इनटू XA। We know that XA plus XB equal to 1. So XB is equal to 1 minus XA. According to this relation, Pa naught into 1 minus XA. If value of 1 minus XA is put into this, then we can say that lowering of vapor pressure, वाष्प दाब में कमी बराबर Pa naught into XB। So we can say that lowering of vapor pressure depends on the mole fraction of non-volatile substance। वाष्प दाब में कमी अवाष्पशील घटक के मोल फ्रैक्शन पर निर्भर करती है। Lowering of vapor pressure is equal to Pa naught into XB because of cross multiplication। Pa naught minus Pa upon Pa naught। If lowering of vapor pressure divided by the vapor pressure of pure solvent, then it's known as a relative lowering of vapor pressure। यदि वाष्प दाब में कमी को शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से डिवाइड किया जाए तो इसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन अवाष्पशील घटक के मोल प्रभाज के बराबर होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस इज इक्वल टू NB upon Na plus NB, moles of B component upon total mole। XB अवाष्पशील घटक के मोल प्रभाज को व्यक्त करता है। इट्स इक्वल टू दी मोल ऑफ B अपॉन टोटल मोल। Relative lowering of vapor pressure is known as a colligative property। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन ही अणु संख्य गुणधर्म कहलाता है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज नॉट नोन एज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी।
वाष्प दाब में अवनमन अणु संख्या गुणधर्म नहीं होता है। बिकॉज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर is equal to the mole fraction of non-volatile substance। क्योंकि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन अवाष्पशील घटक के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है।